Hello everyone. So the question is a 20 ml a mixture of CO, CH4 and helium gases are exploded, right? Exploded by an electric discharge at room temperature with excess of oxygen. So the volume contraction it is found to be 13 ml. A further contraction of 14 ml occur when residual gas is treated with KOH solution. So find out the composition of gaseous mixture in terms of volume percentage. So let us see for that. Let's say that let volume of CO be xml and the volume of He, let's say we are taking it as it won't react. So this is, and if we take for CH4, let's say this will be YmL. So He remains same. Now if we write reactions according to the question, so we have let CO plus of O2 and this gives CO2. Right. So it is, if on balancing this will be half O2. So we have taken C as X. So the mole of C, it is half of CO. So this will be X by 2. And the product is 1 mole. So this will be X. Similarly, if we write reaction concept for CH4, so CH4 plus of O2 and this gives CO2 plus of H2O. So if we balance this reaction first of all, so this will be 2O2 right here. So y ml of this is taken. So y, so this will be 2y and it forms y amount of CO2, right? So if we write the if we write, we know that initial and final, right? So it is a contraction is given, that is equals to 13. So if we write for let's say x plus of x by 2 plus of y plus of 2y, initial minus of final. So final is what we have x and y. So final is x plus y, initial minus final, this is equals to contraction, right, which is 13. So from here we have a relation that x plus 4y it is equals to 26, right? So this is our, let's say, first. And talking about second one, so this is our first equation. So if we write that let's say in the question it is also given as that a further contraction of 14 ml occurs, right, when residual gases is treated with KOH solution. So for further we have residual gases when treated, so let's say x plus y and this will be equals to 14, right? So this will be equals to 14. Let's say this is our second. So from here if we solve this, value of x comes out as 10 and value of y it comes out as 4, right? And if x is 10 and y is 4, we have automatically z, right? So z will be equals to 20 ml minus of 10 plus 4, because the whole solution is of 20 ml, so it will be equals to 6 ml. So now if we calculate percentage, so let's say percentage x, so percentage x this will be equals to 10 upon total, that is 20 multiplied by 100, so it will be 50%. Now if we talk about percentage y, so percentage of y it is 4 divided by 20 into 100, so this will be equals to 20%. And percentage z it is we have 6 ml divided by 20 into 100, right? So this will be equals to 30 ml. So these are percentage composition. Thank you. 5 ml H2O2 सॉल्यूशन जो होता है वो लिबरेट करता है जब एसिडिफाइड के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, तो वो लिबरेट करता है 0.508 ग्राम ऑफ आयोडीन। फिर उसने बोला है कि स्ट्रेंथ बताओ आप H2O सॉल्यूशन के इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ एट STP पे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी रिएक्शन जब होगा H2O2 का KI के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा। तो H2O2 का जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 2 आयोडीन आयन I2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई का ऑक्सीजन, यहाँ बता दूँ मैं आपको, जो एन फैक्टर यहाँ पे निकालना होगा मैं, तो जो यहाँ पे आई का ऑक्सीजन स्टेट है वो -1 है और यहाँ पे आई का ऑक्सीजन 0 है, तो -1 से 0 1 हो गया। और कितने आयोडीन कन्वर्ट हुए, तो यहाँ पे जो इसका एन फैक्टर आ गया, जो एन फैक्टर की वैल्यू आ गई वो एन फैक्टर आ, यहाँ से एन फैक्टर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है,
तो अपन को अब यहाँ निकालते हैं हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट निकालने के बाद मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 127 इंटू टू और एन फैक्टर 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 127। ठीक है, तो यहाँ से अब हम निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट मोल निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मोल ऑफ I2। ठीक, इक्विवेलेंट मोल ऑफ I2 ये क्या होता है, ये होता है कि जो गिवन वेट होती है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट कितनी है आयोडीन की 0.508 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 127, तो ये होगी इक्विवेलेंट मोल ऑफ I2। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हम अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2 का। ठीक है, तो मैं आपको नीचे उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, वो एक्चुअली इक्विवेलेंट मोल का ही कॉन्सेप्ट है। ये N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक, और N1V1 ये हो गया आपका H2O2 का, और ये हो गया आपका I2 का। ठीक है, तो यहाँ पे N2V2 ही क्या है, ये कि इक्विवेलेंट मोल है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मोल आपको दिया हुआ है। N2V2 की वैल्यू कितनी है 0.508 डिवाइडेड बाई 127। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में उन्होंने वॉल्यूम दे रखा है, क्वेश्चन में उन्होंने वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है उन्होंने 5 ml। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो H2O2 का उसका नॉर्मेलिटी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो H2O2 की नॉर्मेलिटी हम निकाल लेंगे, दैट इज N1 इंटू, उसने कितने रखा 5 ml दे रखा है ना शायद, उसने 5 ml दे रखा है, वो 5 ml दे रखा है, 5, हाँ 5 ml दे रखा है। तो ये लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/1000 इक्वल्स टू 0.508 डिवाइडेड बाई 127। तो यहाँ से हम N1 की वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज 508 डिवाइडेड बाई 127 इंटू 1/5, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ से हम N1 की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ गई 0.8, नॉर्मेलिटी आ गई। ठीक है, अब हम इससे निकालते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए हमें पता है कि वन नॉर्मेलिटी में 5.6 होती है, वन नॉर्मेलिटी H2O2 की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है 5.6 होती है। ठीक है, तो जो हमारा H2O2 का नॉर्मेलिटी कितना है 0.8 आया, तो 0.8 नॉर्मेलिटी से जो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा कितना आएगा, दैट इज 5.6 मल्टीप्लाई बाई 0.8, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 4.48 वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगी, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था।